हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहित चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक वेरी पॉपुलर टॉपिक विच इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का एक पार्ट है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड एंड फोर्थ दोनों में ही ये पूछा जाता है। फर्स्ट यूनिट है, फ्रेशली हम स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी फर्स्ट वीडियो से, विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन and formation of partial differential equations. So without any further delay, let's start the video. So first of all, what is partial differential equation? So partial differential equation is a relation between the dependent variable and its partial derivatives with respect to more than one independent variable. Means जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, वहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक ही होता था। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन होते हैं। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ नोटेशंस की, मीन्स जैसे यहाँ पे बोला गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई जेड। सो जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, means z is dependent variable and x and y are the independent variables. So if we differentiate partially z with respect to x, so we have to denote this with p, small p. Small p is the differentiation of partial differentiation of z with respect to x, and partial differentiation of z with respect to y, this is q. and अगर हम बात करें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो इफ वी डिफ्रेंशिएट सेकेंड टाइम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो इसको हम डिनोट करते हैं आर से, एंड डेल टू जेड वाई डेल एक्स डेल वाई, दिस इज स्मॉल एस, एंड डेल टू जेड वाई डेल वाई स्क्वायर, दिस इज स्मॉल टी. So these are the notations for the partial differential equation. So this is the very basic example, means here this is the partial differentiation or partial derivative with respect to x, partial derivative with respect to y. So this is a partial differential equation. If we take one another example, del 2 zy del x square plus del 2 zy del y square is equals to 0. This is also a differential equation, partial differential equation. Okay, so now अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ऑर्डर क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का? सो ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. Order is the highest derivative present in the differential equation. Means if we see this example, so here del 2 zy del x square is raised to the power 2 plus del z del y is equals to 0. The highest order derivative is del 2 zy del x square and the power of this is 2. So here in this particular equation, the maximum order derivative is 2, which is del 2 zy del x square. So order of this particular differential equation is 2. Okay, if we take one another example, suppose if we take del zy del x plus del 2 zy del x square plus del 2 z del cube zy del y cube is equals to 0. This is also a partial differential equation and the highest order is 3. So order of this particular differential equation is 3. Got it? Okay. Now let us discuss about the degree of the partial differential equation. So degree is the exponent of the highest order derivative present in the equation when it has been made free from radical sign and fractional powers. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम इतना तो पढ़ते हैं कि हाँ मैक्सिमम ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर होनी चाहिए, लेकिन वो पावर कैसी होनी चाहिए? वो रेडिकल साइंस और फ्रैक्शंस से फ्री होनी चाहिए.
मीन्स सारी की सारी जो एंट्रीज होनी चाहिए वो नेचुरल नंबर्स में होनी चाहिए पावर्स की, देन हम काउंट करते हैं कि हाँ वो एक डिग्री है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो हेयर डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 2 प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। हेयर द पावर ऑफ द मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2, सो ऑर्डर इज 2 and degree is also 2. If we take one another example, suppose del z by del x plus del 2 z by del y is equals to del cube z by del y cube, and this is raised to the power 1 by 2. Then we have to find the degree of the partial differential equation. So here, this is the partial differential equation. Maximum order derivative is 3 and the power of this derivative is 1 by 2. But 1 by 2 is not a natural number. This is in fraction form. So first of all, we have to remove this fraction power. So for this, we have to square both sides. So we have del z by del x plus del 2z by del y square is equals to del cube z by del y cube. अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1. Now the highest order derivative is 3 and the power of highest order derivative is 1, which is in natural form, natural numbers. So order is 3 and degree is 1. Okay. Okay. Now come to the formation of the partial differential equation. So जब हम partial differential equation को फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म करने के हमारे पास दो तरीके हैं. एक तो जो एक रिलेशन गिवन है या सॉल्यूशन गिवन है, अगर उसमें कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स प्रेजेंट है तो एक तो हम उनको रिमूव करके फॉर्म कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और सेकेंडली क्या है कि अगर हमें फंक्शंस प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो हम उन फंक्शंस को रिमूव करके अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लेके चलने वाले हैं यहाँ पे बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स. ओके, तो यहाँ पे एक वर्किंग रूल मींस अगर हमारे पास में कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस फॉर्म की गिवन है, एफ ऑफ जिसमें फंक्शन है एक्स वाई जेड ए एंड बी का, वेयर ए एंड बी आर द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स. सो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स. वी गॉट समथिंग, उसको एक इक्वेशन लैट कर लेंगे, अगेन उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई, अगेन एक इक्वेशन लैट कर लेंगे. अब हमारे पास 3 इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन 1, 2 एंड 3. तो 1, 2 एंड 3 की हेल्प से हम इस इक्वेशन नंबर 1 में से ए एंड बी को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन विच इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. और इस इक्वेशन में से हम ए और बी को रिमूव कर पाएंगे तो हमारे पास में एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म आ जाएगी. एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. अगर हम ये एग्जाम्पल लें z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी, अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं और इससे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं. पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. So we have del z by del x is equals to a. अगेन अगर हम और del z by del x को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p से, तो ये आ जाएगा p इज इक्वल्स टू a. ओके, अगर हम इसी को डिफ्रेंशिएट करें पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y, सो del z by del y इज इक्वल्स टू 2a square y. Okay, and we know the value of a which is p, and also del z by del y को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल q से, तो ये हो जाएगा q इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर y. तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, q इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज p, so 2p square y. So this is the
डिजायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने इस सॉल्यूशन में से सारे कांस्टेंट्स को रिमूव कर दिया और एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म की है। ओके, let us take one more example. So this is z equals to x plus a times y plus b. So प्रोसीजर सभी क्वेश्चंस का सेम है। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. So we have del z by del x is equals to y प्लस बी, और ये del z by del x को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p से, तो ये आ जाएगा p इज इक्वल्स टू y प्लस बी। ओके, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू y। अगर हम इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, del z by del y इज इक्वल्स टू, अब की बार ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा x प्लस ए, और हम del z by del y को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल q से। सो दिस इज स्मॉल q इज इक्वल्स टू x प्लस ए। सो x प्लस ए की वैल्यू आ गई q एंड y प्लस बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी p। ये दोनों वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। सो वी हैव z इज इक्वल्स टू q इंटू p. So this is the desired partial differential equation. Okay, I hope you will understand. Now come to the second type of formation of the partial differential equation, which is by elimination of arbitrary functions. अभी जो हमने फॉर्म किया है partial differential equation को, by elimination of arbitrary constant था। इसमें हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, सेम प्रोसीजर है। हमको फर्स्टली क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। दोनों में देखना है कोई सिमिलरिटी आ रही है, उस सिमिलरिटी के बिहाफ पे हमें इस फंक्शन को रिमूव करना है इस बारी। चलो इस एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस फंक्शन को कैसे रिमूव करना है और हमें कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. सो वी हैव del z by del y, सॉरी del z by del x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x प्लस वाई, x प्लस वाई को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस 0 आएगा, तो 1 ही आ जाएगा, तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। del z बाई del x को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p से, तो स्मॉल p इज इक्वल्स टू f डैश x प्लस वाई। ये हमने कैलकुलेट कर लिया स्मॉल p। अब हमें कैलकुलेट करना है स्मॉल q। सो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू y। सो y के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आने वाला है, del z बाय del y इज इक्वल्स टू f डैश x प्लस वाई। अगेन इस x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, ये 0, ये हो जाएगा 1। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल q से। सो स्मॉल q इज इक्वल्स टू f डैश x प्लस वाई। यहाँ पे p की वैल्यू भी f डैश x प्लस वाई आ रही है, q की वैल्यू भी f डैश x प्लस वाई आ रही है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, सो वी हैव p इज इक्वल्स टू q और p माइनस q इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द डिजायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऐसे हमें क्या करना है, फंक्शंस को रिमूव करना है अपने जो हमें रिलेशन गिवन है वहां से। ओके, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। दिस इज z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा p स्मॉल p ऑब्वियसली del z बाय del x। ये क्या आ जाएगा, f डैश एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर।
ये तो हमने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 2x। तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी p, 2x को डिवाइड कर देते हैं तो p डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल्स टू f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की व्हेन वी डिफ्रेंशिएट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ differentiate this equation with respect to y, so we have small q which is obviously del z by del y, and this is equals to f dash x square minus y square। अब इस आर्ग्यूमेंट को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू y तो हमें क्या मिलने वाला है, माइनस ऑफ 2y। अब इस माइनस ऑफ 2y को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू f डैश एक्स स्क्वायर माइनस y square। So in this equation and in this equation जो हमारी राइट हैंड साइड है वो दोनों में इक्वल है। अगर ये दोनों में इक्वल है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव p डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल्स टू माइनस q डिवाइडेड बाय 2y। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पी वाई इज इक्वल्स टू माइनस क्यू एक्स, और पी वाई प्लस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द डिजायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है f, एक फंक्शन है g। अब इस z को हमारे पास एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t। तो एक बार हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, एक बार डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t। जो वर्क y करता था वहाँ पे ये वर्क क्या करने वाला है, t वर्क करने वाला है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू x तो ये आएगा डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स प्लस आयोटा टी प्लस जी डैश एक्स माइनस आयोटा टी। ओके, अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू वाई विद रेस्पेक्ट टू टी तो डेल z बाई डेल टी इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स प्लस आयोटा टी। अगर इस आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो t के साथ में क्या टर्म आ रही है, आयोटा, तो इसके साथ में आयोटा भी आ जाएगा प्लस जी डैश एक्स माइनस आयोटा टी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा। लेकिन अभी कोई सिमिलरिटी ऐसी नहीं नज़र आ रही है जिससे हम इस फंक्शन को रिमूव कर पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स प्लस आयोटा टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आयोटा टी। ठीक है, अभी सेम हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड टाइम विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये आ जाएगा डेल टू जेड बाई डेल टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स प्लस आयोटा टी। अगेन इस आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वेयर प्लस ये हो जाएगा जी डबल डैश एक्स माइनस आयोटा टी, माइनस माइनस प्लस तो ये अगेन ये भी क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। वी नो द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1। तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल टू जेड बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं थ्रू आउट, ये बचेगा एफ डबल डैश एक्स प्लस आयोटा टी प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आयोटा टी। एंड ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। सो हमारे को मिल जाएगा यहाँ से डेल टू जेड बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डेल टू जेड बाई डेल टी स्क्वायर प्लस डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिजायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को ट्राई करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है।
Okay, thank you so much. I hope you will understand and you will enjoy the video. And हम क्या करने वाले हैं कि अभी ये हमने एक वीडियो जो अभी रिकॉर्ड किया है, इस वीडियो के बाद हम इस पूरे टॉपिक पर या पूरी यूनिट की प्लेलिस्ट डालने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।